Hey guys, as we know that in our Spring Security lectures, we are not covering everything in just a single video for our better understanding. So in today's lecture, we are going to dive into login and sign up, right? How it is basically collaborated with my JWT tokens. And yeah, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डाइव इनटू दैट एंड मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें कोई भी बेसिक सी चीज़ समझानी पड़ेगी क्योंकि दिस इज़ सच अ सिंपलेस्ट थिंग जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट? एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू कोड अलॉन्ग विद मी एज ऑलवेज. सो या हियर वी आर नाउ इनसाइड माई DTO. एज हम लोग अपने फ्रंट एंड से बात करने वाले हैं, राइट? सो वेन एवर वी टॉक विद आर फ्रंट एंड आई वॉन्ट टू सेट अप सम थिंग्स as DTO, data transfer objects, right? And for that I'm just going to create a login DTO, a sign up DTO, right? And I'm just going to do that. Let's just inside this DTO just create another class, right? Here we are inside my sign up DTO. मुझे सबसे पहले से डेटा बताना पड़ता है. It is not working. Yeah, my alarm box was not working. Yeah, here we are. I can just tell it that hey, I want private string email, and along with that अगर मेरे पास email आता है, right, तो मुझे क्या और चीज़ें चाहिए होती है email के साथ. I can say कि मेरा password चाहिए होता है, right? So yeah, I can write down the password string PSSWRD password, and along with that I can also write the name, right? Private name भी डाल देते हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट इफ़ आई एम क्रिएटिंग माई साइन अप DTO, सो ये बेसिकली तुम्हें पता ही है कि ये रेड लाइन क्यों दिखा रही है. ये कोई एरर नहीं है, इट जस्ट ऐड कर दूंगा तो ये ग्रीन हो जाएगा. दैट्स इट. inside my DTO I'm just going to create another class. That class name would be my user DTO, right? User DTO, same like that. data कर देते हैं. Okay, so when we are talking about my user DTO, so I guess same things inside the sign up DTO. I'm just going to copy these things, right? Control C. Inside this user DTO, let's just copy and paste these things, right? When we are going to talk about my user DTO, the password would not be there, but हाँ, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मुझे अपनी ID चाहिए तो it could be done here. Yeah, here we are. तो मैंने क्या करा, मैंने बेसिकली साइन अप DTO बनाया, उसमें ईमेल पासवर्ड नेम चाहिए होता है, राइट? अब मैं अगर यूज़र DTO बना दूँ तो ऑब्वियसली मेरे यूज़र DTO के पास पासवर्ड नहीं चाहिए मुझे, राइट? सो इट कुड हैव दिस ID, इट कुड हैव दिस ईमेल एंड द नेम. आई कैन ऑल्सो डन this to it. Yeah, here we are now. What I am going to do, I am just going to create another controller, and that controller is going to control each and every request for my sign up and login methods, right? बेसिकली ये वही फ्लो है, वही MVC आर्किटेक्चर है जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो स्टार्टिंग से समझते हुए आ रहे हैं, राइट? नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अनदर auth controller. CONTROLLER controller. Inside my auth controller, yeah, I want my private final. I can say I want to use my user service. This is user service, this is user service. Yeah, here we are. When I am using my auth controller, then I can use REST controller, and along with the REST controller I can use request mapping. Inside this request mapping I can, let's just say auth controller है तो इसका auth ही डाल देते हैं, right? Yeah, here we are. And along with that, if I say not request mapping, it's required args constructor for our future, कि अगर मैं कभी भी constructor बनाऊंगा just like this तो अपने आप बन जाएंगे, right? Yeah, here we are. Now what I have to do, I have to make methods for my login and sign up DTOs, right? And as currently we are not talking about login, we have just created this sign up DTO. so मैं बस sign up DTO का एक method बनाने वाला हूँ, right? I guess यार ये सारी चीज़ों को मुझे बहुत डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दीज आर सम बेसिक थिंग्स जो अभी तक अगर कोई भी बंदा पूरा कोर्स फॉलो अप करते हुए आ रहा है तो उसे आराम से समझ आ रही होंगी, राइट? सो आई एम जस्ट गोइंग टू डाइव इनटू दैट, एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अनदर पब्लिक
यूज़र DTO, राइट, यूज़र DTO चाहिए एंड में, एंड दिस इज द साइन अप method. This sign up method can have this request body, right? Inside this request body I can just type down कि मुझे sign up DTO चाहिए, sign up DTO and then sign up DTO. Yep. And here I can just put on the mapping, and the sign up and login mapping have these post mappings, right? And inside this post mapping I can just write sign up SIGNU, sign up, या एंड अलॉन्ग विद दैट मैं कभी भी अपने अगर HTTP रिक्वेस्ट को यूज़ कर रहा होता हूँ और एट द एंड अगर मुझे राइट कोई कुछ रिक्वेस्ट चाहिए होती है, तो यूजुअली आई जस्ट पुट डाउन रिस्पॉन्स द रिटर्न डेटा टाइप इनसाइड माई रिस्पॉन्स एंटिटी. सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू. आई एम जस्ट गोइंग टू inherit a response entity. Where is my response entity? This is my response entity. So here we are. Yeah. Okay, so here we are. अब मुझे क्या करना है? अब मुझे साइन अप करना है, राइट? साइन अप करते हुए मेरे पास साइन अप DTO आ रहा है. ओके, मैं समझ सकता हूँ. अब मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ मुझे यूज़र सर्विस को कॉल करना है. मैं यूज़र सर्विस से क्या कह रहा हूँ? भाई मुझे ना साइन अप करना है, राइट? मुझे करना है साइन अप, और इस साइन अप में मैं क्या दे रहा हूँ? मैं तुम्हें दे रहा हूँ साइन अप DTO. वो बोलते हैं ठीक है, ठीक है. अब इस साइन अप मैथड की चिंता मत करना, बट एट द एंड जब मुझे मेरा रिटर्न टाइप चाहिए तो वो किस फॉर्म में चाहिए? मुझे यूज़र DTO चाहिए ऑब्वियसली ना. मतलब ऐसा सोचो कि एक बंदा जब साइन अप कर रहा है, राइट, तो वो साइन अप DTO से साइन अप करेगा ऑब्वियसली. अगर कोई बंदा किसी लेट जस्ट से इंस्टाग्राम की बात करते हैं, ठीक है, वो इंस्टाग्राम में साइन अप कर रहा है, अपना अकाउंट बना रहा है. अब उसने अकाउंट बना दिया, उसमें लेट जस्ट से साइन अप में खाली 3 चीज़ें थी, ईमेल, पासवर्ड और नाम. उसने डाल दिया. अब जब वो चीज़ आगे बढ़ के डेटाबेस से बात करने वाली है, तो क्या मैं साइन अप DTO को ही आगे बढ़ाऊंगा या फिर मैं यूज़र DTO को आगे बढ़ाऊंगा? ऑब्वियसली मैं यूज़र DTO को आगे बढ़ाऊंगा. दैट वाज द रीज़न कि मैंने यहाँ पे यूज़र DTO एज रिटर्न टाइप यूज़ करा. अब मैंने यूज़ करा था. अब जब यूज़र DTO में कन्वर्ट करना है, क्या साइन अप DTO से जब ये मेथड कॉल करूँगा तो डायरेक्ट क्या ये मेरे यूज़र DTO में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑब्वियसली नॉट. उसके लिए मुझे मैपिंग यूज़ करनी पड़ेगी. कैसी? मॉडल मैपर से मैपिंग यूज़ करनी पड़ेगी ऑब्वियसली. तो मेरे पास एट द एंड क्या चीज़ आएगी? मतलब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि हम मॉडल मैपर का यूज़ करेंगे इनसाइड माय यूज़र सर्विस. वहाँ पे चेंज हो जाएगा साइन अप DTO इनसाइड इनटू यूज़र DTO. और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे मुझे चाहिए यूज़र DTO. तो आई एम जस्ट गोइंग टू से हे आई वांट माय यूज़र DTO एंड दिस इज़ माय यूज़र DTO. दिस इज़ द इक्वल्स टू साइन. इजंट इट? यस इट इज़. नाउ एट द एंड हमेशा वो रिस्पॉन्स एंटिटी भेजनी है, नॉट रिस्पॉन्स कंट्रोलर, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके. एंड नाउ द बॉडी, एंड दैट बॉडी इज बेसिकली द यूजर DTO. दैट्स इट. अगर हमें ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डाइव इनटू माय साइन अप, राइट? दिस साइन अप मेथड इज नॉट इनसाइड माय user services. So I'm just going to do Alt Shift Enter, or I can just create method sign up in user service. कुछ भी कर सकते हैं. Okay, Alt Shift Enter is not working. इधर पे आ गए, इधर पे ये मेरा बन गया, राइट? ये मेरा मेथड बन गया. नाउ इधर पे मैं क्या करने वाला हूँ? इधर पे मैं ये करने वाला हूँ कि भाई मुझे ना यूज़र चाहिए एट द एंड. ठीक है, वही करते हैं. ठीक है, मैं कहता हूँ यूज़र चाहिए, यूज़र चाहिए. अब यूज़र किस तरीके से चाहिए? ओके, नॉट लाइक दिस यार. यूज़र, राइट? यूज़र चाहिए. यूज़र कहाँ से चाहिए? यूज़र चाहिए डेटाबेस से. डेटाबेस से बात करने के लिए कहाँ जाना होता है? रेपोजिटरी में. रेपोजिटरी से बात करने के लिए सर्विस में. सर्विस में तो हम हैं, तो सर्विस से कहाँ जाना है? रेपोजिटरी में. सो मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ भाई यूज़र रेपोजिटरी में जाओ, और वहाँ पे ये सी हमने मेथड बना रखा था फाइंड बाय ईमेल. अब मैं ईमेल से फाइंड आउट करूँगा और साइन अप DTO के अंदर गेट ईमेल कर दूंगा. मतलब साइन अप DTO का ईमेल यहाँ पे मिल गया. अब मैं फाइंड बाय ईमेल मेथड कॉल कर रहा हूँ, रेपोजिटरी में जाके मुझे यूज़र मिल गया. दैट्स इट. अब पहली चीज़ मुझे यूज़र मिल गया, पर अब थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा सा ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है इसमें. ठीक है, इस मेथड में अगर कोई बंदा पहले से एक ईमेल आईडी से अकाउंट बना चुका है इंस्टाग्राम पे, क्या उसी ईमेल आईडी से उसको अलाउड होना चाहिए या उसको अलाउड होता है
वो आईडी उसी ईमेल से बनाने का? ऑब्वियसली नॉट। तो मैं कहूँगा अगर मेरा यूज़र मिल गया, अगर मेरा यूज़र डॉट इज प्रेजेंट ओके, फॉर दिस प्रेजेंट आई गेस हमें यहाँ पे यूज़र ऑप्शनल करना पड़ेगा। लेट जस्ट डू इट ऑप्शनल। या अगर अब मैं कहता हूँ कि इफ़ माई यूज़र डॉट इज प्रेजेंट यार, या ओके, अगर मेरा यूज़र प्रेजेंट होता है, आई जस्ट वॉन्ट टू थ्रो अ न्यू एक्सेप्शन एंड दैट एक्सेप्शन शुड बी बैड क्रेडेंशियल्स एक्सेप्शन। इसका मतलब ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई यूज़र विद दिस ईमेल आईडी already exists, that's it। and along with that मैं ये भी लिख सकता हूँ with this email id के बाद मैं email id भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। प्लस कर देता हूँ, यहाँ पे भी प्लस कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं क्या करते हैं, साइनअप DTO से हम लोग साइनअप DTO से डॉट गेट ईमेल कर लेते हैं। मतलब कि इस ईमेल से ऑलरेडी कोई अकाउंट है जो बन रखा है पहले से, तो इस पर्टिकुलर ईमेल से आप अपना साइन अप नहीं कर सकते हो, और दैट्स इट। ओके, सो लेट जस्ट ऐड दिस फाइल टू inside my user service। I guess some error is coming। What is this error? Missing return statement। Okay, here we are। अभी हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, बट आई गेस इतना जितना भी हम लोगों ने अभी तक करा, ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने बेसिकली ये कहा कि मुझे साइनअप किस तरीके का चाहिए था, ठीक है, मेरे को बनाना है अपना साइनअप। तो मैं गया साइनअप DTO मैंने बना दिया। उसके बाद मैं कहाँ गया, मैं गया अपने यूज़र DTO में, क्योंकि मुझे यूज़र चाहिए एट द एंड, ठीक है। अब मैं उसके बाद अपना एक ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर बनाया, उस ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर को मैपिंग दी, रेस्ट कंट्रोलर बनाया, रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर बनाया। नाउ आई एम टॉकिंग विद माई यूज़र सर्विस इनसाइड दिस ऑथ कंट्रोलर। एंड आफ्टर दिस मैंने ये मेथड बनाया जिससे साइनअप हो रहा है, साइनअप से मुझे साइनअप DTO मिल रहा है, एंड ऑल दिस। आई गेस दिस इज़ गुड विद यू, एंड दिस इज़ माई यूज़र सर्विस, राइट? या here we are now। when I'm creating my user service, right, user DTO, when I'm creating my user DTO, right, I have to let's just talk about कि मुझे कहाँ पे जाना है, user entity। एक बार let's just wait। हाँ, सो आई गेस ये एरर तो रिटर्न स्टेटमेंट की वजह से आ रहा था, बट इनसाइड माय यूज़र तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैं क्या कर रहा था। मुझे ना मैंने यहाँ पे यूज़र DTO में गया, यूज़र DTO में क्या क्या है, ईमेल आईडी, नेम। when I'm going inside my entity I have this email ID, password, but not the name। so इधर पे मुझे नेम तो लिखना पड़ेगा यार, राइट, दिस इज़ द प्रॉब्लम। एंड यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, राइट, या सो आई गेस अब ठीक हो चुका है, ठीक है। हाँ, नहीं, ये वाले ये तो रिटर्न स्टेटमेंट की वजह से आ रहा है, बट दिस इज़ गुड। ओके, सो हियर वी आर। अब मैं जब यूज़र सर्विस की बात करूँगा, अभी मुझे यहाँ पे एरर दिखा रहा है कि मुझे रिटर्न स्टेटमेंट में एरर आ रहा है, राइट। अब रिटर्न स्टेटमेंट में एरर क्यों आ रहा है भाई? तुम लोग देख सकते हो कि रिटर्न स्टेटमेंट में एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे रिटर्न की वैल्यू नहीं दी है, मैंने रिटर्न की वैल्यू कोई नहीं दी है, राइट। अब मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ, अब मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ एट द एंड मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने अभी इससे पहले तुम्हें बताया कि मुझे भेजना है यूज़र मेरे, ठीक है, मेरे पास अभी क्या है, साइनअप DTO है, मेरे को एट द एंड यूज़र भेजना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं ऑब्वियसली मॉडल मैपर का यूज़ करूँगा, मॉडल मैपर
ठीक है। बट मॉडल मैपर के यूज़ करने के लिए मुझे मॉडल मैपर का कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, एंड फॉर दैट लेट जस्ट राइट प्राइवेट फाइनल मॉडल मैपर एंड मॉडल मैपर, राइट। ये बनाने के बाद नाउ इफ़ आई जस्ट से कि मैं मॉडल मैपर से डायरेक्टली मैप कर दूंगा, एंड इनसाइड दिस मैप मैं क्या करता हूँ, हमेशा एक जो पहला यूज़र है और जिसमें मुझे कन्वर्ट करना है वो लिख देता हूँ, राइट। नाउ मुझे करना क्या है, अब हम लोग बात करते हैं कि हो क्या रहा है। अभी मैं यहाँ पे यूज़र की बात करते हैं, राइट। या टू बी क्रिएटेड यूज़र लिखते हैं। ये यूज़र है क्रिएटर, जो होने वाला है, जो मुझे बनाना है। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर मैं बात करूँ दूसरे यूज़र की, दैट इज़ द यूज़र जो हमारे पास सेव्ड है, राइट, सेव्ड यूज़र। अब आई गेस तुम लोगों के लिए ये चीज़ समझनी थोड़ी मुश्किल हो रही होगी, राइट, ऑब्वियसली हो रही होगी। बट बिफोर दैट अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अब मैं करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं मॉडल मैपर का यूज़ करने वाला हूँ। इनसाइड दिस आई एम जस्ट गोइंग टू मैप डाउन माई साइनअप डीटीओ, एंड इनसाइड दिस साइनअप डीटीओ मैं उसे यूज़र क्लास में कन्वर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, एंड मैं तुम्हें ये सारी चीज़ समझाने वाला हूँ। इनसाइड दिस आई नीड टू कॉल डाउन माई यूज़र क्लास। Yeah, inside my saved user, I can just use my user repository. Inside this user repository, I can just save it to be created user. And इधर पे मैं अपना saved user भेज सकता हूँ, right? ये एरर, ओके, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये saved user को भी किसी क्लास में बदलना पड़ेगा, and that is my user DTO class, right? सी, मैंने क्या करा, मैं तुम लोगों को पहले भी बोला कि मैं ऑथ कंट्रोलर यूज़ करूँ, तो एट द एंड मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यूज़र डीटीओ। यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे थे मैंने तुम्हें बताया हम लोग मॉडल मैपर का यूज़ करने वाले हैं क्योंकि मेरे पास है साइनअप डीटीओ, राइट। अब जब हम लोग यहाँ पे गए, हमारे पास क्या आया, हम यहीं पे गए, यहाँ पे हमारे पास साइनअप डीटीओ आया। अब मैंने क्या कहा, यहाँ पे प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली ये एरर भेज दो। पर अगर प्रेजेंट नहीं है, अगर प्रेजेंट नहीं है तो बनाना है, ठीक है। अब बनाना क्या है, बनाना है साइनअप डीटीओ। पर साइनअप डीटीओ किस तरीके से बनेगा, ऑब्वियसली वो यूज़र क्लास से ही बन पाएगा, ठीक है, वरना वो वैसे नहीं बन पाएगा। तो मैंने उसे मॉडल मैपर यूज़ करके साइनअप डीटीओ को कन्वर्ट कर दिया यूज़र डॉट क्लास में, और ये यूज़र बन गया। अब इस यूज़र को मैंने यूज़र रेपोजिटरी में सेव कर दिया। सेव करने के बाद जब मुझे इसे रिटर्न करना है हेयर, अगर मैं इसे रिटर्न करना चाहता हूँ तो मुझे चाहिए था यूज़र डीटीओ। तो जो मेरे पास सेव्ड यूज़र था उसे मैंने यूज़र डीटीओ डॉट क्लास कॉल करके यूज़र डीटीओ क्लास में कन्वर्ट करा और वापस भेज दिया। क्या ये सिंपलेस्ट चीज़ थी? क्या इसमें कोई समझने की दिक्कत थी? अगर है तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो और मैं तुम्हें पूरा का पूरा अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। बट आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई ना कोई दिक्कत हो रही होगी, राइट। नाउ when we talk about service, right, inside my user service, when I'm creating my user service, this is the service layer, तो मैं इसे सर्विस से बना सकता हूँ। लेट जस्ट ट्राई टू रन द एप्लीकेशन, राइट, आई एम जस्ट trying to run the application. Let's just wait for it. Okay, everything is working fine, but उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं क्योंकि हम लोग JWT सिक्योरिटी और स्प्रिंग सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। लेट जस्ट गो इनसाइड आवर वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, एंड इनसाइड माय वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िग अभी हम लोग पोस्ट एरर ऑथ के बारे में बात कर रहे थे, या इधर पे बीन है, बीन yeah, I guess everything is working fine here. Now, if I want to run this application inside my user detail services inside here, web security config, I want to just comment down this, right? Let's just comment down this.
वाई आई एम बेसिकली कमेंटिंग इट डाउन, क्योंकि अभी इस पर्टिकुलर बीन की कोई ज़रूरत नहीं है इन मेमोरी की, ठीक है। क्योंकि अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं खुद से ही यूज़र डेवलप करने वाला हूँ, खुद से ही यूज़र बनाने वाला हूँ, तो मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट बाय माई ओन, आई एम जस्ट गोइंग टू रीरन दिस एप्लीकेशन। लेट जस्ट रीरन दिस एप्लीकेशन एंड अलॉन्ग साइड हम लोग पोस्टमैन में भी काम करेंगे। सो लेट जस्ट ओपन द पोस्टमैन टू, ठीक है। तो हियर वी आर inside my postman. I can open my postman. Yeah, I guess this is it. Application full on चल रहा है. It is in working mode inside my postman. I can go inside my postman, right? Here we are. Okay, allow brother, allow. या here we are. अगर मैं साइन अप करता हूँ, सो साइन अप में पोस्ट होता है. ओके, आई डोंट वांट दिस, आई वांट HTTP लोकल हो. या ऐसा करते हैं, इसे ऐसे ही रहने देते हैं यार, ये गलत कर दिया मैंने यार. ओके, इनसाइड दिस यूज़र्स हम लोग साइन अप पे जाते हैं, ठीक है. साइन अप पे पोस्ट कर देते हैं एंड इधर पे हम लोग ये हटा के क्या करते हैं, हम लोग ऑथ कर देते हैं, राइट. ऑथ SIGN, आई गेस ऑथ साइन अप ही हमारा ये था. एंड हेयर हम लोग जब साइन अप कर रहे थे, आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर कि हम लोग साइन अप करते टाइम क्या क्या ले रहे थे. ईमेल, पासवर्ड एंड नेम. ओके, ईमेल, पासवर्ड एंड नेम. सो इधर पे क्या था, इधर पे नेम था. ओके, ईमेल, लेट जस्ट से coderiz@gmail.com. My first project is basically coderiz is the name, and along with that अगर हम लोग पासवर्ड लिखें, PSSWRD पासवर्ड लिखते हैं, that password could be, let's just say coderiz ही नाम रख देते हैं, ठीक है. so that it would be easy for us in future. अगर कभी हमें लॉगिन करना हो तो डायरेक्टली नेम से ही हम लोग लॉगिन करते हैं, राइट. here we are. okay, everything is good. if I send this, let's just see. okay, I'm getting some error. unsupported media type, HTTP media UTF-8 as servlet. Wait for a second, right. मेरा एप्लीकेशन तो वर्क कर रहा है, बट इनसाइड माई ऑथ कंट्रोलर क्या मैं देख सकता हूँ कि क्या हो रहा है. हम लोग ऑथ में गए, फिर हम लोग साइन अप में गए, ऑथ में गए, फिर साइन अप में गए. आफ्टर दिस आई गेस अभी एरर नहीं आना चाहिए क्योंकि ये JSON फॉर्मेट में है. ओके, सो पहले हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेट में भेज रहे थे सब कुछ, इसलिए एरर आ रहा था, ठीक है. सो ये गलती मत करना. मुझे लगा भाई ये कभी एरर मैंने देखा नहीं है. सो हियर वी आर, दिस इज़ द ईमेल, दिस इज़ द आईडी एंड दिस इज़ द नेम. सो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा साइन अप मेथड अपने आप अच्छे से वर्क ऑन मोड में है, राइट. नाउ
what I have to do, I have to just dive down inside my user service, and inside my user service अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं बेसिकली ना ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी जब भी यूज़र साइन अप करता है, आई डोंट वांट माई पासवर्ड टू बी विजिबल लाइक दिस ओनली, राइट। ये पासवर्ड इस तरीके से नहीं रहना चाहिए मेरे पास, ऑब्वियसली नहीं रहना चाहिए, राइट। सो किस फॉर्म में रहना चाहिए? इट शुड बी एनकोडेड, इजंट इट? So for that, inside my user services, I have to tell it कि भाई मुझे ना पासवर्ड एनकोडर यूज़ करना है, and inside this I have to tell it, hey, I wanna use this password encoder, right? ये बेसिकली प्रोडक्शन फीचर है कि कभी भी हमारा पासवर्ड जैसा है वैसा नहीं रहना चाहिए, that it should be always encoded when we are talking about to our repository, right? And it should be encoded so that if my database or anything get hacked, उस पर्टिकुलर यूज़र की डिटेल्स मेरे पास सेव रहें, राइट। सो या दिस इज़ द रीज़न पासवर्ड एनकोडर यूज़ करते हैं। नाउ इफ़ द यूज़र टू बी क्रिएटेड यूज़र, राइट, अगर मैं इसके आगे यहाँ पे डाल देता हूँ कि मुझे पासवर्ड सेटअप करना है, राइट, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने मॉडल मैप करा और जो मेरे पास साइनअप डिटेल था मैंने उसे यूज़र क्लास में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे यूज़र क्लास में वो कन्वर्ट हुआ, वहाँ पे मैं एनकोड कर सकता हूँ उसे। सो फॉर एनकोडिंग दैट आई कैन जस्ट टू बी क्रिएटेड यूज़र कोक set password and that password could be encoded, password encoder dot encode, yeah, this is the thing जो हमें करनी चाहिए, and to be created user या to be created user dot get password, right, इसका पासवर्ड लेके इसे एनकोड कर देते हैं। एंड बेसिकली तुम लोग ये पूछ रहे होगे कि ये पासवर्ड एनकोडर क्या हमारे पास एक ऐसा मतलब क्या हमने इसे कहीं पे इंस्टॉल करा या कुछ? ये बेसिकली वो मेथड है जो हम लोग पहले बना चुके हैं, राइट। तो तुम लोग अगर ये देखो पासवर्ड एनकोडर, राइट, पासवर्ड एनकोडर या इधर है, ठीक है, वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में, वही मैं सोच रहा था। तो बी क्रिप्ट पासवर्ड एनकोडर सब कुछ को एनकोड कर देता है, एंड दिस इज़ द बीन जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर से पासवर्ड एनकोडर को इंजेक्ट करा और फिर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ, राइट। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें भी कोई दिक्कत आ रही होगी किसी को। आफ्टर दैट यूज़र सेव्ड यूज़र, एवरीथिंग इज़ गुड विद अस। नाउ मैं सेम चीज़ कर सकता हूँ कि मैं अपने एप्लीकेशन रन कर सकता हूँ एंड देन तो मैं दिखा सकता हूँ। इस लाइन से बेसिकली कुछ चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ सेम है, बस ये हुआ है कि जो मेरा पासवर्ड था वो अब ज़्यादा सेव हो चुका है, राइट। नाउ व्हाट, नाउ तुम लोग ये देख चुके हो कि हमारा साइनअप पूरे सही तरीके से काम कर रहा है, हाँ भैया कर रहा है। Now we are going to dive into our login part, right? Now I'm just going to create my login method, login DTO, login this class. So yeah, for creating that login, अब तुम लोग ये समझो कि अगर फ्रंट एंड में मैं साइन अप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फ्रंट एंड में क्या आया, साइन अप की चीज़ें आई, क्या ईमेल आया, पासवर्ड आया, क्या साइन अप और लॉगिन सेम होगा? ऑब्वियसली नॉट ना। साइन अप में मैं सारी चीज़ें डिटेल्स भरता हूँ, बट जब मैं लॉगिन की बात करता हूँ तो लॉगिन में कुछ चीज़ नहीं होती है भाई। लॉगिन में बस ये होता है कि भाई ईमेल डालो, पासवर्ड डालो, चले जाओ उधर पे। तो वही करने वाला हूँ, ठीक है। और वही चीज़ अपने दिमाग में रखना कि लॉगिन करते टाइम जो भी मैं काम कर रहा हूँ मुझे कुछ सेटअप नहीं करना है, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी सेटअप्ड हैं, ठीक है। मुझे बस उसे ग्रैब करना है थ्रू माई रेपोजिटरी, राइट। मैं किस तरीके से फ्लो काम करता है, DTO से क्या हुआ, DTO से हम लोग अगर कहीं पे मैपिंग करनी होती है, कुछ हो करता है वो तो आगे जाके होगा, बट DTO से कंट्रोलर्स में जाते हैं, कंट्रोलर से आगे सर्विस में जाते हैं, सर्विस बेसिकली रेपोजिटरी से बात करती है, राइट। रेपोजिटरी बेसिकली डेटाबेस से बात करता है, और ऐसे सारा फ्लो आगे चलता है। ये हमारा MVC आर्किटेक्चर होता है। सो फॉर दैट आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अनदर क्लास इनसाइड माई DTO, एंड दैट DTO क्लास इज बेसिकली द लॉगिन पार्ट, लॉगिन DTO, राइट। लॉगिन DTO, सो मैं तुम लोगों को बस इतने भी बता दूं कि तुम लोग ये सारी चीज़ें देख तो रहे हो, राइट, बट आई वॉन्ट यू ऑल टू जस्ट गो एंड ट्राई आउट इन योर ओन इंटेलिजेंट आइडिया विदाउट वॉचिंग दिस वीडियो टू, कि भाई तुम लोग खुद कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, राइट। सो दैट ये तुम्हारे इंस्टिंक्ट में बस जाए कि भाई अभी क्या करना है, अभी क्या करना है। क्योंकि कुछ चीज़ें होती है ना जो हम लोग डायरेक्टली ChatGPT कर लेते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें ChatGPT होके बन जाती हैं,
बट इन टुडेज़ वर्ल्ड हम लोगों को चीज़ें समझ आनी चाहिए कि चैट जीपीटी से अगर बन भी गया कोई मेथड, ठीक है, तो चैट जीपीटी क्या कर रहा है। अब ऐसा मैं बोलूँ कि यही चीज़ वो बना सकता था चैट जीपीटी, ठीक है, बट चैट जीपीटी को नहीं पता कि मेरा पासवर्ड एनकोडर कहाँ पे बन रखा है। अब चैट जीपीटी बोलेगा भाई यहाँ पे भी पासवर्ड एनकोडर बना दो, या फिर वो पासवर्ड एनकोडर बनाएगा ही नहीं। तो अगर तुम्हें ये चीज़ पता ही नहीं होगी कि मेरी एप्लीकेशन में कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है, किस चीज़ को किस तरीके से काम करना है, तो भाई चैट जीपीटी या कोई और एलएलएम मॉडल तुम्हारा कभी भी मदद नहीं कर सकता, राइट। तो चाहे तुम किसी भी मेथड किसी भी एलएलएम मॉडल को उठा लो। सो I'm just going to create another DTO class. Inside this, I have to call this annotation data, right? Data. Inside this login, I can call out private string email. अभी हम लोगों ने बात करी थी इसकी कि ईमेल होगा और पासवर्ड होगा, राइट। प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड, राइट। ये गलत हो गया, वैसे स्ट्रिंग बना दूँ, राइट। इतना हो गया। नाउ हम मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे अपने ऑब्वियसली गेट कर देता हूँ, गेट को ऐड कर देता हूँ। एंड नाउ ऑब्वियसली मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे अपने ऑथ कंट्रोलर में जाना है, क्योंकि अभी तक हम लोग ऑथ कंट्रोलर में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑथेंटिकेशन का ही पार्ट है। सो दैट इज़ द रीज़न कि मुझे यहाँ पे जाना है। एंड नाउ आई हैव टू टेल इट सेम वे जो पहले हुआ था वही चीज़ अभी भी हो रही है। लॉग इन में बेसिकली अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब ऑथ कंट्रोलर में मैं स्ट्रिंग लेट जस्ट से लॉग इन इनसाइड दिस लॉग इन एक रिक्वेस्ट बॉडी यार, ये एक रिक्वेस्ट बॉडी, उसमें लॉग इन डीटीओ आया मेरे पास, लॉग इन डीटीओ आ गया। इनसाइड दिस लॉग इन डीटीओ मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई मुझे ना टोकन चाहिए, राइट। अब हम लोग थोड़ा JWT के बारे में बात कर रहे हैं इसमें कि मुझे टोकन चाहिए, और वो टोकन कहाँ से चाहिए, यूज़र सर्विसेज से चाहिए। अब यूज़र सर्विस में क्या था, अगर तुम लोगों ने पहले भी देख रखा होगा तो नॉट इनसाइड में यूज़र सर्विसेज, तो मुझे यहाँ पे यूज़र सर्विसेज में खुद लॉगिन का भी बनाना पड़ेगा, या राइट। सो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉल आउट माई यूज़र सर्विसेज। इनसाइड द यूज़र सर्विसेज मैं लॉगिन यूज़ करने वाला हूँ, एंड इनसाइड दिस लॉगिन मेथड आई हैव टू कॉल आउट माई लॉगिन डीटीओ। After getting this login detail, I'm just going to return this response entity as usual. But response entity अगर return करनी है तो यहाँ पे response entity होनी भी चाहिए, right? Response entity, let's just do it like this. Do it like this. You know, man, then do it like that. ठीक है, टोकन बन गया, आई थिंक इज गुड। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लॉगिन मेथड कॉल करना है, बट बिफोर दैट मैं यहाँ पे एक मैपिंग भी यूज़ कर लेता हूँ, पोस्ट मैपिंग, दैट इज पोस्ट मैपिंग। इनसाइड दिस पोस्ट मैपिंग आई कैन जस्ट यूज़ माय लॉगिन, राइट। लॉगिन, आफ्टर दैट मुझे ये लॉगिन मेथड बनाना है। आई कैन क्रिएट दिस लॉगिन मेथड, लेट जस्ट क्रिएट दिस लॉगिन मेथड, राइट। हियर वी आर। सी आई गेस मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, एंड वो कहाँ पे होगा, आई डोंट नो। Let's just wait for a second. Okay, this is the D folder. Spring Boot book. This is the book, this is the security basics. क्या मेरे यहाँ पे मेरे पास सारी चीज़ें हैं, या सी अभी हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सिक्योरिटी फिल्टर चेन के बारे में हम लोगों ने बात करी, राइट। अभी क्या हो रहा है, अभी मैं लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन हुआ, रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट सिक्योरिटी फिल्टर चेन में जाएगी, अब वो तो JWT का पार्ट है, वो सब हो रहा है। बट क्या मेरे पास यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मैनेजर है, हाँ। अब जब मेरे पास रिक्वेस्ट आई, राइट, क्या वो ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास जाएगी, ऑब्वियसली उस ऑथेंटिकेशन मैनेजर से वो डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर्स के पास जाती है, उन प्रोवाइडर से वहाँ पे एनकोड होता है पासवर्ड, यूजर डिटेल सर्विसेज पे जाता है। ये चीज़ें हम लोगों ने हैंडल कर रखी है, राइट। बट दिस ऑथेंटिकेशन मैनेजर इज समथिंग जो हम लोगों ने ऑथेंटिकेट नहीं करी, जो हम लोगों ने हैंडल नहीं करी, एंड फॉर दैट आई एम जस्ट गोइंग टू import this authentication manager inside my application, and here we are, right. So here we are, and I'm just going to take my authentication manager. Let's just not this, okay, user detail services, here we are, हटा देते हैं इसे, ठीक है।
inside my web security config I can call it, right, inside my web security config मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे एक और bean बनानी है, right, and I want to create that bean with the name of authentication manager, okay, here we are. सो ऑथेंटिकेशन मैनेजर बनाने के बाद आई हैव टू टेल इट कि भाई दिस ऑथेंटिकेशन मैनेजर विल थ्रोज एक्सेप्शन, बट बिफोर थ्रोइंग द एक्सेप्शन इनसाइड माय ऑथेंटिकेशन मैनेजर, क्योंकि मैंने तुम लोगों को ये भी बताया हुआ है शायद कि ऑथेंटिकेशन मैनेजर बनता कैसे है. आई डोंट नो ये इधर पे होगा या नहीं होगा. या तो तुम लोग इधर पे देख सकते हो कि ऑथेंटिकेशन मैनेजर जब भी बनता है तो ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेटेड, ऑथेंटिकेशन, फिर उसका ऑब्जेक्ट बनता है, राइट. And that is the way I am just going to create this authentication manager. Authentication I want to use this configuration Can I use this authentication configuration? Authentication configuration ऐसे यूज़ करते हैं, राइट. config नाम रख देते हैं इसका, या इसका नाम config cnfig config रख देता हूँ. Here we are. एट द एंड मुझे बस config रिटर्न करना है, ठीक है. मुझे इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है. मुझे बस क्या करना होता है, मुझे ऑथेंटिकेशन मैनेजर बनाना होता है, एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है उसका, और उस ऑब्जेक्ट को कॉल करते हुए मुझे मैनेजर को बस रिटर्न करना होता है. दैट इज़ गेट ऑथेंटिकेशन मैनेजर एंड दैट्स इट, ठीक है. तो यही करना होता है. और ओके कुछ ना कुछ आ रहा है इसमें, एंड दैट इज़ व्हाट रिटर्न कॉन्फ़िग. I can also throw the exception here, throws exception, right. So yeah, everything is good. Now we can use this particular service inside the services, right. Now I can use this inside our services. I can get into here, and inside my authentication manager मैं क्या करने वाला हूँ, I'm just going to take private final authentication manager. inside this authentication manager मुझे बस authentication manager कॉल आउट करना है. या अब जब मेरे पास authentication manager आ गया, now I am going to create my login DTO, right. सो बेसिकली करा क्या मैंने, बेसिकली ये करा मैंने, अगर मेरे पास कोई पहले से यूज़र है, ठीक है, मुझे बस उसे लॉगिन करना है. फॉर दैट मुझे उसे ऑथेंटिकेट करना होगा कि ये यूज़र एक्चुअल में वो पर्टिकुलर यूज़र है या नहीं है. फॉर दैट आई वॉन्ट टू ग्रैब दैट पर्टिकुलर टोकन, राइट, इजंट इट. अब वो टोकन जब मिलता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे जब मैं लॉगिन बना रहा था इनसाइड माय ऑथ कंट्रोलर, राइट, मैंने जो रिटर्न टाइप था वो इससे स्ट्रिंग रखा. when this is a string, मुझे string रिटर्न करनी है, and that is basically the token, right. and इधर पे मैं login DTO के बारे में बात करता हूँ. सो यहाँ पे अब जैसे हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन यूज़ करा था ना, कि हम लोग ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे थे, वैसे ही अब मैं ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ. this is the authentication is equals to authentication manager, and authentication manager is going to authenticate, this is going to authenticate the new user नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन को ये वो करने वाला है, क्या करने वाला है, ऑथेंटिकेट करने वाला है. मैंने तुम लोगों को जब मैं स्प्रिंग सिक्योरिटी सिखा रहा था, मैं तुम्हें बोल रहा था ना कि सिक्योरिटी फिल्टर चेन के अंदर कॉर्स फिल्टर है, CSRF फिल्टर है, और लॉगआउट फिल्टर के बाद यहाँ पे एक छुपा हुआ है, वो छुपा हुआ यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर ही है, ठीक है. तो हम लोग वही ऑथेंटिकेशन फिल्टर यूज़ कर रहे हैं, और ये रहा वो ऑथेंटिकेशन फिल्टर. एंड इनसाइड दिस फिल्टर मुझे क्या करना है, मुझे बस लेट जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, राइट, नॉट हियर, आई कैन जस्ट टेल कि मैं यहाँ पे हूँ. राइट नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज़ आई हैव टू कॉल डाउन माई लॉगिन DTO, एंड इनसाइड दिस लॉगिन DTO मुझे ईमेल पास आउट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि एज यूज़र नेम मैं ईमेल को यूज़ कर रहा हूँ, और एज पासवर्ड मैं पासवर्ड को यूज़ करूँ. तो आफ्टर दिस मैं पासवर्ड यूज़ करूँगा, एंड गेट पासवर्ड, नॉट गेट ईमेल, right. yeah
अगर ये मुझे समझ आ गया कि अभी क्या हो रहा था, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस। या हियर वी आर। नाउ मुझे क्या करना है, अब मुझे एक यूज़र बनाना है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अनदर यूज़र। यूज़र इक्वल्स टू ऑथेंटिकेशन, एंड इनसाइड दिस ऑथेंटिकेशन मुझे एट द एंड प्रिंसिपल चाहिए। दैट्स इट। ओके, इट इज शोइंग मी सम एरर. So get principal basically gives me the object and I want the user, right? I can just cast this, right? So it is basically casted down. User service में basically get कर सकता हूँ, add कर सकता हूँ. Here we are. One error is coming, missing return statement. Okay. I guess इतना तुम लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी. एंड नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट आर JWT सर्विस, क्योंकि अब मुझे टोकन के बारे में बात करनी है, राइट? सो टू जनरेट द टोकन आई हैव टू क्रिएट दिस JWT सर्विस, एंड फॉर दिस आई वांट टू मेक अ कंस्ट्रक्टर. I want to make a constructor for my JWT service. JWT service, राइट? बन गई. नाउ मैं JWT सर्विस के बारे में बात करने वाला हूँ. अभी मेरे पास यूज़र आ चुका है, राइट? अब मेरे पास यूज़र आ चुका है. अब यूज़र आने के बाद मुझे बस क्या चाहिए मेरे पास? सी, आई गेस अगर तुम्हें ये चीज़ समझ नहीं आई अभी तक लॉगिन की, यार मैं क्या करना चाह रहा हूँ ना, मैं बेसिकली अपने JWT से बात करना चाह रहा हूँ. और मुझे अपने JWT से बात करने के लिए मुझे चाहिए यूज़र. क्यों चाहिए? क्योंकि अगर मैं यूज़र आईडी भेज पाया वहाँ पे, तो वो टोकन को जनरेट कर पाएगा. अब वो अगर टोकन जनरेट करेगा, उसके बाद की चीज़ें बात JWT में जो होता है वैसा होगा. बट उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले एक बंदे ने लॉगिन करा. लॉगिन करा तो उसका जब लॉगिन हुआ, एट द एंड मुझे पता है जनरेट करना है टोकन. टोकन से पहले, जनरेट करने से पहले यूज़र आईडी होनी चाहिए. यूज़र आईडी से पहले मेरे पास क्या है? मेरे पास है लॉगिन DTO. अब वो लॉगिन DTO मुझे किस में कन्वर्ट करना है? मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा लॉगिन DTO इनसाइड माई यूज़र्स. बट एंड वही मैं कर रहा हूँ. मैंने लॉगिन DTO को यूज़र में यहाँ पे कन्वर्ट करा, राइट? बट बिफोर दैट एक स्टेप आता है, वो आता है ऑथेंटिकेशन मैनेजर का, क्योंकि वो ऑथेंटिकेट करता है. अब वो ऑथेंटिकेशन मैनेजर इस तरीके से ऑथेंटिकेट करता है. और वो क्या ऑथेंटिकेट करा उसने? इस पर्टिकुलर ऑथेंटिकेशन फिल्टर का, सिक्योरिटी फिल्टर चेन का, सिक्योरिटी फिल्टर चेन में इस पर्टिकुलर फिल्टर का यूज़ करके एक नया ऑथेंटिकेशन करा. और ये अगर ऑथेंटिकेट हो गया तो उसके बाद हम लोग कहते हैं कि भाई इस यूज़र को ना, इस यूज़र का प्रिंसिपल गेट करो और इसे ऑथेंटिकेट कर दो, एंड देन इसका इस यूज़र में कन्वर्ट करके इसे यूज़र बना दो. और इस पर्टिकुलर जो ये यूज़र वेरिएबल है, इसके अंदर इस यूज़र को डाल दो. अब इस पर्टिकुलर यूज़र को मैं कहाँ भेजने वाला हूँ? अपने JWT सर्विस में भेजने वाला हूँ टू जनरेट द टोकन. दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ. हियर वी आर साइड. सो आई गेस अभी तक अगर हम लोगों ने कुछ भी करा है, ठीक है, मुझे लगता है कि सब कुछ ये सारी चीज़ समझ आ गई होंगी. नाउ आई एम just going to string token, right? String token is equals to JWT service dot generate token is the method. और generate token के अंदर हम लोग यूज़र भेजते थे, राइट? यूज़र भेजते थे. for that inside this user मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? अगर मेरा टोकन जनरेट हो गया, आई कैन जस्ट रिटर्न दिस टोकन. I guess everything is good now, right? I can run this application now. Let's just run this application. Consider a bean type org authentication manager in your configuration. Okay. Okay.
आई गेस मुझे अपना पूरा का पूरा लॉगिन मेथड यूज़र सर्विस से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा एंड इनसाइड माय JWT सर्विस वेट फॉर अ सेकेंड. अगर मैं अपने लॉगिन मेथड को कंट्रोल एक्स कर दूँ राइट फ्रॉम माय यूज़र सर्विस मैं इसे कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ कहाँ पे अपने ऑथ सर्विस में राइट सो आई डोंट हैव एनी ऑथ सर्विस हियर आई गेस राइट सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर ऑथ सर्विस. Right, yeah, this is the service layer. Along with that मैं required args constructor को कॉल आउट कर सकता हूँ. इनसाइड दिस required args constructor मैं ऑड सर्विस में ये भी कह सकता हूँ कि भाई I want to paste this, right? If I'm pasting this, I don't have authentication manager and JWT service. तो मैं यहाँ पे जाता हूँ authentication manager और JWT service को control X कर लेता हूँ, कंट्रोल भी कर देता हूँ. ओके गेट करके ऐड कर देता हूँ ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर. एक रिलेटेड प्रॉब्लम फिर से आ गई है. दिस इज़ व्हाट दिस इज़ ओके. यूज़र सर्विस से नहीं होगा ये होगा अब ऑथ सर्विस से, क्योंकि मैंने अपने ऑथ सर्विस में से डाल दिया है. तो ये मुझे एरर ओके ये प्राइवेट फाइनल ऑथ सर्विस ओके फिंगर क्रॉस्ड यार, अब एरर नहीं आना चाहिए. Okay, so my application is basically failed to stop to creating defining bean inside the storage. Wait, वो एरर इसकी वजह से नहीं. ओके 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 आई गेस गलती ये है कि मैंने इधर पे बीन नहीं डेवलप करा. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू रीरन दिस एप्लीकेशन. लेट जस्ट ट्राई कि अब एरर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में अगर हम लोग कुछ भी कॉल आउट कर रहे हैं तो उसे बीन बनाना ज़रूरी है, राइट? ओके ग्रेट, माई एप्लीकेशन इज इन वर्किंग मोड. नाउ हमें कहाँ जाना है? ओह नॉट दिस ब्रदर, नॉट नाउ. आई हैव टू गो डाउन टू माई पोस्टमैन. इनसाइड माई पोस्टमैन अब एक और यूज़र में एक और लिंक बनाते हैं. दैट this new request is basically post same auth. Sorry. auth के अंदर हम लोग login रख देते हैं, login रख देते हैं, right? inside this login अगर मैं अब use this body, use raw JSON format, right? inside this JSON format मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ भाई मेरे पास नेम क्या है, नेम है कोडरिज एंड अलॉन्ग विद दैट मुझे पासवर्ड देना है एंड पासवर्ड शुड बी कोडरिज. नहीं आई गेस ईमेल था. राइट ईमेल कोडरिज@gmail.com.
कॉमा कर देते हैं, ये बना देते हैं, ये बना देते हैं, ऐसे ये बना देते हैं, इधर पे भी ये बना देते हैं, स्ट्रिंग बना दी। लेट जस्ट सेंड इट। 404 नॉट फाउंड, आई गेस दिस इज नॉट द वे। आई गेस मुझे इसे नेम देना पड़ेगा। नॉट गेटिंग इट। ओके ओके यार, कोई ना कोई गलती हो रही है एंड आई डोंट नो ये गलती क्यों हो रही है। लेट जस्ट डाइव इनटू हियर इन आवर एप्लीकेशन। मैं यहाँ पे कहाँ पे था, मैं लॉग इन DTO नहीं, कंट्रोलर्स में थे, पोस्ट कंट्रोलर में जाते हैं, पोस्ट कंट्रोलर में पोस्ट ये रहा, नॉट इनसाइड माई पोस्ट कंट्रोलर यार, ऑथ कंट्रोलर में, ऑथ ये रहा, साइन अप ये रहा, लॉग इन ये रहा। ऑथ में साइन अप करा, ये बन गया। नेम क्या था, कोड्रेस। पासवर्ड क्या था, कोड्रेस। ठीक है, न्यू रिक्वेस्ट में गया। एक बार लॉगिन में भी देख लेते हैं। इनसाइड में लॉगिन कहाँ बनाया था, ये रहा। लॉगिन में पहले ईमेल चाहिए, फिर पासवर्ड चाहिए। ठीक है, koodres@gmail.com। ईमेल हियर इट इज़ राइट। मैंने जैसे ही साइन अप करा एंड फिर मैंने उसी को लॉगिन करा। सो हियर वी आर एंड दिस इज़ द टोकन राइट। आई डोंट नो ये पहले क्यों नहीं चल रहा था। आई गेस पोस्टमैन को थोड़ा रीलोड होने में थोड़ा टाइम लगा है राइट, वरना ये फर्स्ट अटैम्प्ट में ही चलना चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में हमने यही लिखा था। नाउ मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूँ कि अभी ये रियली सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है राइट। सो लेट जस्ट टाइप डाउन हियर, just going to create to jwt.io, जहाँ पे जाके हम लोगों ने कल भी देखा था, एनकोड करा था, डिकोड करा था बेसिकली वो टोकन राइट। सो ये बेसिकली जनरेट हुआ है। क्या जनरेट हुआ है, टोकन जनरेट हुआ है एंड दिस इज द JWT टोकन। यू हैव टू वेट डाउन यार, आई डोंट नो यार आज इतना टाइम क्यों ले रहा है ये। कंट्रोल V। सो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या आ गया, 1 आ गया, ईमेल क्या आ गया, koodres@gmail.com आ गया, इशूड एट एक्सपायरेशन टाइम एंड दीज आर बेसिकली द रूल्स। दिस इज़ द सीक्रेट की, इनवैलिड सिग्नेचर फेल्ड राइट। सो वही चीज़ है यार, अगर मैं ऐसे सिग्नेचर को यहाँ से हटा दूँ एंड सेम कल की तरह अगर मैं यहाँ पे जाऊँ एंड अपने application.properties से इफ़ आई जस्ट कॉपी दिस पर्टिकुलर की inside my JSON web token secret key, so it is a valid secret and it is a valid JWT, everything is valid। so तुम लोग देख सकते हो कि किस तरीके से चीज़ों ने काम करा राइट। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ लेक्चर राइट। अगर तुम में से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आई हो आज के लेक्चर में, जस्ट कमेंट डाउन बिलो। एंड मुझे भी लगता है कि आज थोड़े ज़्यादा एरर्स आ गए राइट, बट आई एम नॉट गोना क्रिएट अनदर लेक्चर एंड द रीज़न बीइंग कि बार बार सेम लेक्चर बना के राइट तुम अपनी परफेक्शनिस्ट साइड दिखाते हो लोगों को, बट आई डोंट वांट टू शो दैट जस्ट बिकॉज कुछ लोग मुझे रिसेंटली लिंक्डइन में एक बंदे का मैसेज आया था एंड ही सेड दैट हाउ कुड यू इवन मेक some applications in Spring Boot right, I cannot even think of it। so it is not कि हम लोग एक बारी में सारी चीज़ें समझ जाते हैं। मैं कितनी भी बार कोई भी बंदा प्रैक्टिस कर लेना भाई, एरर तो आते ही है ना।
राइट। एंड दैट इज़ वाई कि हमारे पास इतने सारे अब डॉक्यूमेंटेशंस हैं, हमारे पास इतनी अच्छी चीज़ है डीबग करने के लिए। हमारे पास इनसाइड माई इंटेलिज आइडिया मेरे पास डीबगर्स होते हैं, राइट। मैं इनसाइड माई यूज़र्स, मैं यहाँ पे इसे मैंने यहाँ पे कॉलम में लगा दिया, ये डीबगर है बेसिकली, ठीक है। तो मैं इसे रन करूँगा तो ये मेरे टर्मिनल में दिखाता है कि भाई डीबग हो रहा है। हम लोग बेसिकली उसे भी यूज़ करेंगे, देखेंगे। और हमें इसीलिए तो चैट जीपीटी, एलएलएम मॉडल्स इसीलिए तो दिए गए ना, कि हम लोग उनका सही तरीके से यूज़ कर सकें। और ये कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता कि वो एक बारी में कोड लिखे और वो पूरा का पूरा कोड चल जाए, ठीक है। एरर्स मेक्स अस, राइट। वी आर ह्यूमंस एंड दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग एरर्स बनाएंगे ही बनाएंगे, हम लोग एरर्स करेंगे ही करेंगे, ठीक है। इवन एलॉन मस्क अपने स्पेस शटल्स बनाने के लिए भी ना भाई इतने सारे बार फेल हुआ है, ठीक है। तो फेलियर से ही हम लोग सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। सो जस्ट कीप गोइंग, ठीक है। ये नहीं होता है कि भाई तुम लोग कैसे कर लेते हो, हम नहीं कर पाते हैं, ये वाली थिंकिंग छोड़ दो। एरर से ही इंसान बनता है, बात खत्म, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, तब तक के लिए पढ़ते रहो, और कल हम लोग और ज़्यादा पढ़ेंगे। एंड आई गेस जस्ट कमेंट डाउन बिलो कि तुम लोगों को JWT का एडवांस सेक्शन, जो हम लोग एडवांस पढ़ेंगे JWT, वो एक सिंगल वीडियो में चाहिए, या इसी तरीके से आधे घंटे, 40 मिनट या 1 घंटे के स्मॉल चंक्स में चाहिए, राइट। सो तुम्हारी जैसा भी कमेंट आएगा मैं उस तरीके से वीडियो अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।